آئندہ 5 سال کے لیے ملک کے نئے صدر کا انتخاب، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جاری۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی مد مقابل۔ صدارتی انتخابات 2024، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ تمام فیصلے پارلیمنٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر آصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا رحیم یار خان کے قریب فیلڈ مشقوں کا دورہ۔ آرمی چیف کو شمشیر صحرا مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے ساتھ پورا دن گزارا۔ ٹینک، انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج قوم کی حمایت سے اپنے مادر وطن کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مقامی لوگوں کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا عزم۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی فوج کی مختلف علاقوں میں گولہ باری، مزید 78 افراد شہید، مجموعی تعداد 30,878 ہو گئی، 72,402 زخمی۔ خان یونس میں قابض فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی گرفتاریاں۔ بھارت میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ 25ویں روز بھی جاری۔ ہریانہ پولیس کا کسان مظاہرین پر تشدد، کسان مظاہرین کا 14 مارچ کو دہلی میں مہا پنچایت کا مطالبہ۔ بھارتی مودی سرکار اپنے کسان طبقے کو کچلنے میں مصروف، درجنوں احتجاج کرنے والے کسانوں کو دہلی جاتے ہوئے حراست میں لے لیا گیا۔ دہلی پولیس کا گرفتاریوں کو محض ایک ڈرامہ قرار دے کر تحقیقات کرنے سے انکار، رائٹرز۔ بھارتی براہموس میزائل کے پاکستان میں گرنے کے 2 سال مکمل۔ 9 مارچ 2022 کو بھارت کا براہموس میزائل پاکستان کے علاقے میاں چنو میں آ گرا۔ بڑے بڑے ہتھیار رکھنے والے بھارت کے پاس ان ہتھیاروں کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں۔ براہموس میزائل کا پاکستان کے علاقے میں گرنا ہندوستانی افواج اور بالخصوص ان کی ٹیکنالوجی پر سوالیہ نشان۔ بھارت نے حادثے کی مکمل اور جامع رپورٹ جاری نہیں کی، جو اس کی ایک بڑی نااہلی ہے۔ 23 مارچ کو منایا جانے والا یوم پاکستان ملک کی تاریخ میں تمام محب الوطن پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جسے بعد ازاں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ قرارداد پاکستان، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ جس نظریے کے تحت ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے، اس کی بنیاد اسلام، اخوت، مساوات اور برابری ہے۔ عوام کی رائے۔ پاکستان رینجرز کا بہاول نگر میں مفت میڈیکل کیمپ، مستحق لوگوں کا طبی معائنہ اور ادویات بھی مہیا کی گئیں۔ 440 افراد نے استفادہ کیا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ علاقہ مکین کا عوامی فلاح کے سلسلے کو جاری رکھنے کا مطالبہ اور فورس کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب میں طوفانی بارشوں کے امکان پر پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ پی ٹی ایم میں ریسکیو 1122 سمیت متعلقہ ادارے اور ضلعی انتظامیہ انتظامات سے آگاہ رکھیں۔ نشیبی علاقوں سے عوام کی بروقت محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے۔ آگاہی کے لیے میڈیا، سوشل میڈیا اور موبائل الرٹ سروس سے مدد لی جائے۔ دیہی علاقوں میں مویشیوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ بارش اور برف باری کے نئے اسپیل کی پیشگوئی، مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہوگا۔ 14 مارچ تک خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے لاہور، کراچی اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیم اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया। स्टेडियम्स में नशिस्तों में इजाफे के साथ साथ शायकीन के लिए सहूलियात को भी बेहतर किया जाएगा। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। अल इत्तेहाद ने अल हदूद को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। लीग लीडर्स अल हिलाल के अल रियाज के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 65 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क के नए सदर के इंतखाब के हवाले से, जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। सदारती इलेक्शन में सेनेट और कौमी असम्बली के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया है। सेनेटर शहरी रहमान को आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया गया है, जबकि सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट हैं। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान असद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरसलान, बताइएगा अब तक कितने अरकान की जानिब से वोट कास्ट किया जा चुका है? अपने नुमाइंदे से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि मुल्क के नए सदर का आज इंतखाब होने जा रहा है। सदारती इलेक्शन में सेनेट और कौमी असम्बली के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। अरसलान असद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरसलान, बताइएगा क्या सूरत हाल है सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की, सेनेट की, चारों सूबाई असम्बलियों की? किन किन अरकान ने अब तक वोट कास्ट कर लिया है? जी, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ इस्लामाबाद में जो है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली का जो हाल है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया है। और कौमी असम्बली के हाल में जो अरकान सेनेट है और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो सदारती इंतखाबात में अपना अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेनेट के जो अरकान हैं वो ऐवान 100 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन ऐवान मुकम्मल क्योंकि नहीं है, उसमें तकरीबन 92 अरकान शामिल हैं, वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। जबकि कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो 336 अरकान पर मुश्तमिल है। ताहम उसमें भी अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं हुए, कुछ अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। तो मजमूई तौर पर जो है कौमी असम्बली और सेनेट के 401 अरकान जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। अब तक हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 70 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो कौमी असम्बली और अरकान सेनेट जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। जो सदारती उम्मीदवार हैं दो उम्मीदवार हैं, दोनों में ही 1-on-1 मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पार्टी, बाप पार्टी, MQM के जो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। उनके मुकाबले में जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनकी इत्तेहादी जमातों के जो उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई, वो हैं। इन दोनों में 1-on-1 का मुकाबला है। इस वक्त जो है 70 से ज़्यादा वोट पोल हो चुके हैं, जबकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ इसका जो वोटिंग का तरीक़ाकार है और जो फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा पेचीदा है। अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो 1973 का आइन है उसके तहत जो अरकान सेनेट हैं और अरकान कौमी असम्बली है उनका एक वोट शुमार होगा सदारती इंतखाबात में। इसके अलावा जो बलूचिस्तान असम्बली जो सबसे छोटी असम्बली है चारों सूबाई असम्बलियों में, उसके 65 अरकान हैं एक टोटल ऐवान, उनका भी एक वोट शुमार होगा। जबकि बाकी जो 3 असम्बलियाँ हैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की, उनके जो है वो उनकी टोटल जो अरकान की तादाद है वो 65 पर तकसीम किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जो पंजाब के हैं अरकान उनके 500 उनके जितने अरकान हैं उनको जब तकसीम किया जाए तो ये 5.71 वोट बनता है, अरकान का एक वोट बनेगा। इस तरह जो सिंध असम्बली है उनके 2.58 वोट जो हैं अरकान उनका एक वोट बनेगा। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके 2.24 अरकान का एक वोट शुमार
ہوگا. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی براہ راست نگرانی جو ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کر رہے ہیں, اور وہی جب اس کی صبح 10 سے لے کر 4 بجے تک لگاتار یہ ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا, جاری ہے اس وقت, اور اس کے ووٹوں کا جو حاصل کردہ ووٹ ہے ان کے نتائج کا اعلان چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کریں گے, اور کامیاب امیدوار جو ہے وہ ان کا اعلان کریں گے. جو ووٹنگ ہے اس کے لیے بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شائع کیے ہیں. اس کے اوپر دونوں امیدوار ہیں, ہر ایک جو رکن ہے وہ اپنے پسند کو امیدوار کے سامنے جو ان کا نام ہے ان کے سامنے کراس کا نشان لگاتا ہے, اور یہ خفیہ رائے دہی کی جیسے کہ عام ووٹ ہوتے ہیں, عام انتخابات ہیں, اس کے مطابق یہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے. وہ آ کر پھر ایک بیلٹ باکس پڑا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ اپنا ووٹ عکاس کرتے ہیں. جو سابق صدر آصف علی زرداری ہیں ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ سینیٹر شہری رحمان ہیں, جبکہ محمود خان اچکزئی کے جو پولنگ ایجنٹ ہے اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں, وہ سینیٹر سردار شفیق ترین ہیں. جی بہت شکریہ ارسلان اسد, بہت ہی تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا. پولنگ صبح 10 بجے سے جاری ہے اور بلا تعطل شام 4 بجے تک جاری رہے گی. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں وزیر اعظم نے سردار ایاز صادق ایوان کی کارروائی احسن انداز سے چلانے پر خراج تحسین پیش کیا. دونوں رہنماؤں نے قانون سازی اور پارلیمانی عمل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. ناظرین, پنجاب اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی. اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گی ہماری نمائندہ ہما صدف. ہما, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, پنجاب اسمبلی میں بھی جو صدارتی الیکشن ہے اس کا عمل پرامن ماحول میں جاری ہے. حکومت اور اپوزیشن ارکان کی کثیر تعداد ایوان میں موجود ہے. اب تک تقریباً 50 سے زائد ارکان صوبائی اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. جو صدارتی الیکشن کے لیے آصف علی زرداری کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کا نام علی حیدر گیلانی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. سنی اتحاد کونسل کے امیدوار جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ مشتاق احمد خان ہیں, جبکہ یہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے نثار درانی جو ہیں وہ فرض ادا کر رہے ہیں, اور باقی سارے عمل جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے تمام صوبائی اسمبلی میں جاری ہے. الفابیٹیکلی اور سیریل نمبر کے حساب سے اراکین کے نام پکارے جاتے ہیں اور وہ اپنے نام کے اوپر آتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. خفیہ رائے شماری کے ذریعے یہ آج ووٹنگ کا عمل ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہوتے, آخری گھنٹے میں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ جو مس ہو گئے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. اور کیونکہ آج جو بھی رکن آتا ہے اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے اس طرح کی ڈویژن یا اس طرح کی بندش نہیں ہے کہ وہ سب لوگ لابی میں چلے جائیں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد. تو اس لیے کچھ جو ماحول ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ویسے بھی جو اسمبلی ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے پاس ان کا کنٹرول ہے, اور وہ پولنگ اسٹیشن کے طور پر جو ہے وہ خدمات ان کی جو ہے وہ لی گئی ہیں, اور یہاں پر الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق پولنگ کا عمل جاری ہے. اور سب لوگ اپنی آئی ڈی کارڈ کے علاوہ کسی کی بھی جو حاضری ہے وہ ممکن نہیں ہے. ووٹ کاسٹ اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ذریعے ہو رہا ہے. اور جو آپ سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے بھی خصوصی انتظامات ہیں کہ آج بہت بڑا دن ہے, صدارتی انتخاب ہو رہا ہے, اور ایک بار پھر جو ہے وہ ایک مرحلہ بھی ہم نے مکمل کیا کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور جو صوبائی سطح پر حکومت سازی ہوئی. تو اب ایک طرح سے جمہوریت کا عمل مکمل ہونے جا رہا ہے, کیونکہ نیا صدر مملکت بھی جو ہے آج منتخب کر لیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی کے اراکین جنہوں نے یہاں پہ میڈیا ٹاک کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی, بلکہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور صدر آصف زرداری ایک دفعہ پھر جو ہے صدر مملکت منتخب ہوں گے. اور وہ بڑے مشہور ہیں سیاسی ڈائلاگ کے حوالے سے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے. تو بطور وفاقی علامت وہ یہ جو کام ہے وہ مزید بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے اور سب کو جوڑ کر رکھیں گے. اور نیکی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو پہلے بھی تجربہ رکھتے ہیں پاکستان کو ترقی کی راہ پر خاص طور پر معاشی حوالے سے گامزن کرنے کا, تو ان کی پالیسیاں اور ساتھ جو سیاسی ڈائلاگ ہے وہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے. اور وہ پارٹیاں جن کو تجربہ ہے اور جو پاکستان کو پہلے پاکستان کھپے کے نعرے کے تحت لے کے چل چکی ہیں وہ ایک بھرپور کردار ادا کر سکیں گی. توقع کی جا رہی ہے کہ آج کے انتخاب کے بعد پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام کا ایک دور تھا وہ ختم ہو جائے گا, اور ایک
سیاسی استحکام کا اور اس کے نتیجے میں یقیناً معاشرت استحکام کا نیا دور شروع ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمد صدف آگاہ کر رہی تھی پنجاب اسمبلی سے. رخ کریں گے اب سندھ اسمبلی کا، جہاں پر اسی طرح سے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور اب تک 25 سے زائد اراکین ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی پریزائڈنگ افسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہماری نمائندہ نورین آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں. نورین بتائے گا، صدارتی انتخاب کے لیے سندھ اسمبلی میں پولنگ کا عمل جاری ہے، 25 سے زائد اراکین ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں؟ جی بالکل، اب تک جو ہے وہ 25 سے زائد اراکین اپنے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. حروف تہجی کے تحت ان کے نام جو ہے وہ پکارے جا رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں جو ہے وہ اسپیشل اسمبلی کارڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا ووٹرز کو، تاکہ وہ کارڈ دکھا کر ہی انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی. کیونکہ آج سندھ اسمبلی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا درجہ اختیار کر چکی ہے. تو پولنگ جو ایجنٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مراد علی شاہ ہیں اور ایم کے ایم کی طرف سے علی خورشیدی ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے شبیر قریشی ہیں اور ووٹنگ کا عمل جاری ہے. سب سے پہلا ووٹ جو ہے وہ ایم کے ایم کے رکن اسمبلی عبد الباسط نے دیا اور تقریباً جو ہے وہ 25 سے زائد اراکین نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. 4 بجے تک جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. پولنگ ایجنٹس کو شروع میں بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھی ان کو دکھائے گئے تھے اور ووٹرز کو جو ہے وہ تفصیلات بھی بتائی گئیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور جو بھی ان کا پسندیدہ امیدوار ہے اس کے سامنے جو باکسز میں انہوں نے مخصوص پین کے ذریعے جو ہے وہ نشان لگانا ہے. اس کے علاوہ جو بھی اراکین ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے، ووٹرز ان سے ان کا کہنا ہے خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے کہ بہت پر امید ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری سابق صدر جو ہے وہ جیتیں گے، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جمہوریت کا عمل ہے بہت خوبصورت انداز سے چل رہا ہے اور پہلے بھی جو ہے وہ بہت سندھ کے خاص طور پہ بہت زیادہ کام کیے گئے ہیں سندھ کے عوام کے لیے، ملک کے لیے. ابھی بھی جو ہے وہ پوری کوشش جاری ہے کہ صوبے کے عوام کے، پورے ملک کے عوام کی خدمت کی جائے، بہتر طور پر جو ہے وہ اس بار سامنے آیا جائے. ان کو یہ عوام کو یہ ثابت کیا جائے کہ کتنے اچھے انداز سے یہ جمہوری عمل جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس پورا جو پولنگ کا عمل ہے وہ بہت پرامن طریقے سے جاری ہے، بہت ہی اچھے انداز سے. اور جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہے عقیل احمد عباسی، وہ پریزائڈنگ آفیسر کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے. صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ صاحب بھی خود یہاں پر موجود ہیں اور تمام تر جو اراکین ہیں وہ اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جی تمام تر اراکین اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، حروف تہجی کے اعتبار سے ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں. سندھ اسمبلی سے نورین آصف ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. نورین آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کریں تو صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. ابھی تک صوبائی اسمبلی کے کتنے اراکین نے اپنے ووٹ پول کے، اس حوالے سے جان لیتے ہیں عبدالصبور خٹک سے. جی عبدالصبور خٹک، آگاہ کیجیے گا کے پی اسمبلی کی کیا صورتحال ہے؟ جی خیبر پختونخوا اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. ابھی تک 25 اراکین اسمبلی نے اپنے ووٹ پول کیے ہیں. یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین کی جو تعداد ہے یہاں پر وہ 118 ہے، جبکہ یہ ٹوٹل یہاں پہ 145 نشستیں ہیں، جس میں ابھی تک جو ہے 118 ہے، جس میں 115 جو ہے جنرل ہے اور جس میں 2 پر ابھی تک انتخاب نہیں ہو سکا. 113 جنرل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ باقی جو ہے 27 اپوزیشن کے ہیں، جس میں اپوزیشن اراکین میں سے 27 اس کی تعداد ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی ممبران کی تعداد 90 ہے، جبکہ ایک آزاد رکن ہے وزیر اعلیٰ پختونخوا. وہ چونکہ اس نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، وہ چونکہ آزاد حیثیت سے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پولنگ کا عمل جاری ہے. ابھی تک 25 ممبران نے اپنے ووٹ پول کیے ہیں، جبکہ یہاں پر وہ ہے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ممبران کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. جی بہت شکریہ عبدالصبور خٹک، آگاہ کر رہے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی کے احوال سے.
नाज़रीन, बलोचिस्तान असम्बली में भी सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। जिन अरकान की जानिब से वोट कास्ट किया जा चुका है उनमें वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती, स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई, डॉक्टर मोहम्मद नवाज, सादिक सिंजरानी, रुबाबा बुलेदी, प्रिंस उमर अहमद ज़ई, सरदार फैसल जमाली समेत मुतादिद अरकान शामिल हैं। बलोचिस्तान असम्बली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सरफराज शेख। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। सरफराज, सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है इस वक्त बलोचिस्तान असम्बली में, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग फार्मूला के तहत इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में भी वोटिंग का अमल भरपूर तरीके से जारी है और आज का दिन जो है वो बलूचिस्तान असम्बली की जो तादाद है उस हवाले से ख़ास अहमियत रखता है ये इलेक्शन। बलूचिस्तान असम्बली अरकान की तादाद 65 है, लेकिन आज 62 अरकान जो हैं वो अपना हक़ राय दही खुफिया बैलेट के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का वोट सदारती इलेक्शन में जो है एक ही वोट काउंट होता है और सदर मुमलिकत के इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियाँ मुसावी हैसियत रखती हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की कुल तादाद बलूचिस्तान की तादाद से तकसीम हो जाती है। सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था और इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान प्रेजाइड कर रहे हैं और वो भरपूर तरीके से जो है वो निगरानी भी कर रहे हैं। इस हवाले से बलूचिस्तान असम्बली के अहाते में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है। अब तक जिन अरकान ने वोट कास्ट किया है उनकी तादाद तकरीबन 20 हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज शेख। आप बलूचिस्तान असम्बली से हमें सदारती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग के अमल से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे। सदारती इंतखाब के सिलसिले में हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक इस्लामाबाद में हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दिए गए इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रहीम यार खान के करीब फील्ड मशकों का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को रहीम यार खान के करीब जारी फील्ड एक्सरसाइज शमशीर सहरा मशकों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ दिन गुजारा, टैंक, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से मादरे वतन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ की। मश्क का मकसद पेशा वराना सलाहियत में इजाफे और मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद और 104 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी हमलों में अब तक 30,878 अफराद शहीद जबकि 72,402 ज़ख्मी हो चुके। वस्ती गजा के इलाके दीरुल बलाह में इसराइली फ़ौज मुसलसल बमबारी कर रही है। हमलों में कम अज़ कम 11 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। बमबारी से कई इमारत भी मुनहदम हो गईं। खान यूनस में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। सफ़ाक फौजियों ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को घरों में घुसकर हिरासत में लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगज़दा गजा में 22 लाख की आबादी को कहत का सामना है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 300 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी का कहना है कि गजा में 95% हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। और नाज़रीन, क्या हम बहैसियत कौम यौम पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ़ हैं? 23 मार्च को मनाया जाने वाला यौम पाकिस्तान मुल्क की तारीख में तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर में पेश की गई, जिसे बाद अज़ा करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। करारदाद पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया। वो मुतालबा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस मुतालबे की बदौलत जुदागाना वतन के लिए ऐसी तहरीक का आगाज हुआ जो 7 बरस के बाद अलग वतन के मुतालबे के हुसूल में कामयाब हो गई। 23 मार्च के बारे में आवाम ने इजहार ख्याल किया है, आपसे शेयर करेंगे।
23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को इस दिन के निस्बत से हमेशा कायम और दायम रखे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने इसको आगे उभारा और जिस नजरिए पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया है, इस्लाम के नाम पर, अखवत के नाम पर, मसवात के नाम पर, बराबरी की बुनियाद पर। 23 मार्च का करारदाद मंजूर नहीं हुआ, आज पाकिस्तान साढ़ा ना हुआ। 23 मार्च की परेड देखने जब जाते थे तो यही दिल करता था कि काश मतलब खुद भी हम आर्मी ज्वाइन करें और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। हम भी बॉर्डर पे जाएं, हम भी मतलब पाकिस्तान की हिफाजत करें, हमारा भी नाम शहीदों में खिलाएं। ये मत भूलें कि ये हमारा ही पाकिस्तान है, अपने पाकिस्तान के लिए जिए, अपने पाकिस्तान के लिए लड़ें, और जो भी हो, अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई उल्टी बात कर रहा है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इससे हैं, ये हमारी पहचान है और ये हमारी जान है। हर खुशी, हर कामयाबी सब पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। पेशा जो भी हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि कुछ ऐसा कर दिखाएं कि इस वतन को हम पर नाज हो। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर नौजवानों ने वतन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। हमारी हर खुशी, हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में एक तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान। हम एक बंद मिट्टी की तरह जो कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारी मुस्कुराती आंखों के ख्वाब आजाद हैं। हमारा पेशा कोई भी हो, लेकिन मकसद एक है। चलो आगे बढ़े अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत से। कुछ ऐसा कर दिखाएं कि इस वतन को हम पे नाज हो। हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Long live Pakistan। नाज़रीन, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खसूसी परेड के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। परेड ग्राउंड में आवेजा होने वाले कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर और बिलबोर्ड्स भी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। बिलबोर्ड्स बनाने वाले माहिरीन ने यौम पाकिस्तान के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया है। 23 मार्च पाकिस्तान डे, इस दिन का हमें पूरा साल शिद्दत से इंतज़ार रहता है। हम खुशी से और अपने जज्बे के साथ इस काम को सर अंजाम देते हैं। हम बिल बोर्ड तैयार करते हैं, एंट्री गेट तैयार करते हैं। हमारे हिस्से में ये बिल बोर्ड का काम आया है, तो जनाब इस पे लगती है बाबा कायद-ए-आज़म की तस्वीर, अल्लामा इकबाल की तस्वीर। जब हम देखते हैं ना कि उनकी तवीज़ इस बोर्ड पे आवेजा है, हमारे दिल बाग बाग हो जाते हैं कि ये काम हमने किया है। हर एक काम को बड़ी प्यार और मोहब्बत से, सलीके से तैयार करते हैं, ताकि जो हमारे आने वाले मेहमान होते हैं वो उसको देखकर खुशी महसूस करें। जब टेलीविज़न पर हमारी फैमिली या अजीज़ व अकारब या पूरे पाकिस्तानी टेलीविज़न पर लाइव देख रहे होते हैं कि हमने जो काम किया है वो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय भी किया है, उस वक़्त हम अपने जज्बे का इजहार नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है कि हम 23 मार्च का हिस्सा होकर उसमें अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। हमारा काम जो है वो पाकिस्तान के लिए है और हम पाकिस्तान का प्राउड हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मुकामी अफराद ने इलाके से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। कराची में पाक बहरी की मश्क सी स्पार्क 2024 की इख्तितामी तकरीब हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मश्क में पाक बहरिया के बहरी और फजाई जहाज़ों, आबदोजों, एयर डिफेंस रेडार्स ने जंग के तनाजुर में अमली इक़दामात का मुजाहरा किया। सी स्पार्क के दौरान लाइव मिसाइल फायरिंग और दुश्मन के बहरी बेड़े को समंदर में जॉइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मश्क भी की गई। इन मशकों में पाक बहरिया के साथ PMSA, पाकिस्तान आर्मी और पाक फजाइया के एहलकारों ने जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लिया।
पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का हजम्ब्रो क्रीक के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया और PMSA के हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज और कश्तियां लापता माहीगीरों की तलाश में मसरूफ़ अमल हैं। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को खराब मौसम के बायस हजम्ब्रो क्रीक के करीब खुले समंदर में डूब गई थी, जिसमें 45 अफराद सवार थे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुकीम सिख कम्युनिटी ने भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मोदी हुकूमत की तरफ से किसान अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम, सिखों की आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए सिखों की टारगेट किलिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारत इन इक़दाम को फौरी बंद करे। किसानी ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। और नाज़रीन, 9 मार्च 2022 को भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में आ गिरा था, जो इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े हथियार रखने वाले भारत के पास इन हथियारों को संभालने की सलाहियत नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान के इलाके में गिरना हिंदुस्तानी अफवाज और बिलखसूस उनकी टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान है। वाक़े को 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक भारत ने इस हादसे की मुकम्मल और जामे रिपोर्ट जारी नहीं की, जो इसकी एक बड़ी नाअहली है। Human error as likely the reason. जो होगा तो ह्यूमन एरर होना ही है, because these 6 locks have to be done by hand. The Indian Ministry of Defence said, and I quote, on March the 9th, 2022, in the course of a routine maintenance, a technical malfunction led to the accidental firing of a missile. Such serious matters cannot be addressed with the simplistic explanation preferred by the Indian authorities. भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 25वें रोज भी जारी। किसान रहनुमाओं का नए निजाम पर हुकूमत की पेशकश को ठुकराने के बाद एहतजाज दोबारा से जारी है। दिल्ली पुलिस की जानिब से इजाजत न मिलने के बावजूद किसानों ने जंतर मंतर की जानिब मार्च शुरू कर दिया, जबकि दिल्ली पुलिस की जानिब से किसान मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। किसान मुजाहिरीन ने 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का मुतालबा कर रखा है। रॉयटर्स के मुताबिक दर्जनों एहतजाज करने वाले किसानों को दिल्ली जाते हुए हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियों को महज एक ड्रामा करार देकर तहकीकात करने से इनकार कर दिया है। किसानों के हुकूक की पामाली में नाम नेहाद इंसाफ का राग हलापने वाली भारतीय अदलिया भी मोदी सरकार की आलहकार बनकर भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। चीन ने भारत की जानिब से सरहद पर फौज की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारत का अमल कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकता है। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि भारत की जानिब से मुतनाज़िया सरहदी इलाके में फौजियों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक है और भारत का इकदाम कशीदगी को कम करने के लिए हरगिज़ साजगार नहीं है। तर्जुमान माउनिक ने कहा कि भारत की जानिब से इस तरह के इकदाम अमन के लिए साजगार नहीं हैं और ये अमल दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाले मुआहिदे के मुनाफी है। मुतादिद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने चीन के साथ अपनी मुतनाज़िया सरहद पर मज़ीद 10,000 फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की ख़वातीन मुसलसल भारतीय फ़ौजियों के मज़ालिम का निशाना बन रही हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 1989 से अब तक भारतीय फ़ौजियों के हाथों शहीद होने वाले 96,000 से ज़ायद कश्मीरियों में हज़ारों ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी अरसे के दौरान 11,263 कश्मीरी ख़वातीन की इस्मत दरी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन समेत मुतादिद कश्मीरी ख़वातीन भारतीय जेलों में कैद हैं, जिन्हें कश्मीरियों को खुद इरादियत देने का मुतालबा करने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है।
हजारों लोगों की जबरी गुमशुदगियों के बायस कई माएँ अपने लापता बेटों के इंतजार में दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। रुक करेंगे कौमी खबरों का। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 177 रोज से जारी मुहिम के दौरान 19,885 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर 61,794 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए हैं। तो वो बेशक शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में हॉल में बैठकर सिगरेट पीना हो, या आज पंजाब असम्बली के अंदर एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक मेंबर है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी वो मेंबर नहीं है, आज़ाद मेंबर है, उनका वोट को, जो एक सीक्रेट वोट बैलेटिंग है, उस वोट को लहरा कर उस वोट की सीक्रेसी को ब्रीच करने की बात मिले तो वो आपको इन्हीं कार्टूनों से मिलेगी। और इसके ऊपर राइटली जो है वो ऑब्जेक्ट किया गया है, बिकॉज ये सीक्रेसी ऑफ वोट के खिलाफ है। या तो इन जाहिलों को के लिए कोई तरबीती जो है वो काम कर लें, या फिर यह है कि इनको जो है वो ज़बरदस्ती इनको कान पकड़ कर जो है वो उनको बताया और समझाया जाए कि चलें किसी ना किसी तरह आप आ ही गए हैं असम्बलियों के अंदर, तो कम से कम असम्बलियों की जो है वो डेकोरम देख लें। दूसरी तरफ जो आज बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आवाम को इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहती हूँ, वो है कुछ दिन पहले वो भी एक हमारी मौसूफा नवी इनकलाबी हुई हैं जिनके पूरे ख़ानदान में कभी कोई इनकलाबी दूर से भी नहीं गुजरा था। शानदाना गुलजार साहिबा जो एक MNA हैं, ना वो सुन्नी इत्तेहाद की हैं ना वो PTI की हैं, आज़ाद कह लेते हैं उनको, और उन्होंने उनको आजकल बहुत गुफ्तगू करने का शौक़ आया हुआ है। और ये वही खातून है कि जिनको रिलीफ देने के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाया गया। उस वक़्त भी ये खातून जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा ज़राई भी करती रही, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया को आज भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन करती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कॉन्स्पिरेसीज़ के अंदर शामिल होती हैं। और अब उन्होंने कुछ दिन पहले ज़िले शाह मरहूम जो एक बड़ा ही खूबसूरत वर्कर था तहरीक इंसाफ मरहूम का, उस ज़िले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको चलकर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा। जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक होता है। और आज भी जो ज़िले शाह की फैमिली है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ज़िले शाह बेचारा सारा दिन ज़मान पार्क के बाद टेंट के अंदर बैठा रहता था कि उसको कभी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, और वो अंदर वो जो है वो ज़िले इलाही वो टांग पे टांग रखकर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। उसकी लाश को भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो हिम्मत से और उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो वीडियो आपको याद है कि आपने वो देखा होगा कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसके अंदर जिस गाड़ी के अंदर ज़िले शाह को जो है वो डालकर वहाँ पहुँचाया गया, वो किसकी गाड़ी थी वो भी सामने आ गई। उसके ऊपर बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केस जो है उसकी डिटेल्स पूरी पब्लिक के सामने है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ज़िले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नज़र नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि इनफ इज़ इनफ, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल किया, वो आपको याद है ना इमरान खान, वो मुझे कान में किसी ने कहा था 35 पंक्चर, मैंने कह दिया। वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर मुझे किसी ने बताए थे, कह दिए। लेकिन अब सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, झूठी प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वजीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है।
اس کے اوپر ثبوت پیش کرے, ورنہ قانون کا جو ہے وہ پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر عورت کارڈ لے کے نہیں آنا, پھر سیاسی انتقام. آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, آپ کی بدتمیزی, آپ کے الزامات, آپ کی کیوی کریکٹر اسیسینیشن برداشت کر کے اب انف از انف. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا شندانہ گلزار صاحبہ, آپ کو اس انکوائری کے اندر پیش ہونا ہے اور آ کر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس, ورنہ پھر آپ قانون کا سامنا کریں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل چاہا, میں نے یہ کہہ دیا, میں بس چمچماتی ہوئی آئی, میں نے کچھ بھی کہا اور میں گھر چلی گئی. اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے, نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کرنے. اگر آپ کو پروپیگنڈا کرنے کا شوق ہے, جھوٹے پروپیگنڈا پر اس کو فیس کریں. یہ اب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی پی ایم ایل این کی طرف سے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کسی نے بھی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں نے بہت مؤدبانہ گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی, میں آج بھی مؤدبانہ ہی کروں گی, لیکن میں نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں چلے گا. میرا دل چاہا, میں نے یہ کہہ دیا, میں نے فلانے نے سنا, میں نے یہ کہہ دیا. اب جو آپ بات کریں گے اس کا یا تو آپ ثبوت لا کے اس کو ثابت کریں گے, ورنہ پھر آپ کو جو ہے یہ اب عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میری معزز عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک شخص جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے, کسی فیوریٹ سیاسی پارٹی سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی جائے گی, اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر آپ جو ہے جب آپ سے قانون پوچھتا ہے, جب قانون آپ سے ثبوت مانگتا ہے, پھر آپ سیاسی انتقام کا جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ شندانہ گلزار صاحبہ اب ایف آئی اے میں پیش ہوں گی اور جا کر جو انہوں نے کہا ہے, جو آڈیو ان کے پاس ہے, وہ برائے مہربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں, اور جو اس کے اوپر اس کا فورنزک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو, اور جو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے. شندانہ گلزار نے مکمل طور پر لغو اور بے معنی, بے سروپا الزام لگایا ہے, اور یہ ڈیفامیشن کے جو لاز ہیں یہ بھی یقیناً میری گزارش ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی یہ جو ہماری اس وقت کی قومی اسمبلی ہے, یہ ہمارے منشور کے اندر بھی شامل تھا, جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا کہ ڈیفامیشن لاز کو بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے, ٹائم لائن کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا عمران خان اور اس کی پارٹی کو کھلی چھٹی ہے, جس کی مرضی پگڑی اچھاڑ لے, ان کی جس کو دل چاہے اس پہ قتل کا الزام لگا دے. قتل کے الزامات آپ کے اوپر ہیں. ذلے شاہ کے قتل کا بات کرتے ہوئے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. اس کارکن کی ایک تو آپ نے خود, آپ کے لوگوں نے اس کو مارا, مارنے کے بعد یاسمین راشد کا کردار یاد نہیں, وہ بدلہ بتا چکا ہے, جو گاڑی پہ لے کے گیا تھا کہ میں نے تو یاسمین راشد کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے. یاسمین راشد بھی اس کو پردہ ڈال کے بیٹھ گئی. پھر جب یاسمین راشد کے بارے میں بات کرے پھر کینسر کارڈ آ جاتا. یہ نہیں ہو سکتا. قانون کے اندر خواتین کو امیونٹی حاصل نہیں ہے, قانون کے اندر کسی مریض کے لیے امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس امیونٹی ہے وہ جو مرضی بول دے, یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی بولنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اب نہیں ہوگا. یہ عادت جو آپ کو پڑی ہے اس کی تصحیح اب ہمیں کرانے کا طریقہ آ گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی شندانہ گلزار صاحبہ یہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہے, ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا ہے. میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گی, میں نے اس دن بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہی ہوں. ایسا جی یہ بتائیے گا کیا اب جو ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے, چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا پچھلے دوار کی حکومت ہو, اب کی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, کیا ایسے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کہ جو آزادانہ طور پر تصدیق کی جاتی ہے, سب سے زیادہ قانون بنایا جا رہا ہے؟ میں سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے کی جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر سب سے زیادہ بات کرتی ہوں, میں سب سے زیادہ اس کے لیے اس کی حامی ہوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی کہیں پر جو اظہار رائے ہے وہ دوسرے کے پاس بھی اظہار رائے ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, میرے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. میرے پاس اگر آپ میرے پہ الزام لگا رہی ہیں تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر میرے پہ غلط الزام لگا تو پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا چاہیے, ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. سو اس لیے سوشل میڈیا کے قوانین جو ہیں وہ ہر جگہ پر سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کسی کی بھی تصدیق کر دیں, کسی پہ قتل کا الزام لگا دیں, کسی کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر دیں, اور یہ جو ہوتا رہا ہے بہت ہو گیا ہے. اب ہمیں اس کو اس سے آگے بڑھ کر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. کیا حکومت کے لوگ بھی ابھی کچھ تاخیر کا شکار ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیجئے کہ کیا 200 سے زائد ووٹ جو ہیں صدر زرداری صاحب کو جو ہیں یہاں سے ملیں گے, اور کیا سنی اتحاد کونسل جو ہے جو ان کا بار بار دعویٰ ہے جی کہ ہمیں آزادانہ طریقے سے ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا, وہ کیا اس انتخاب سے بھاگ رہے ہیں؟ وہ ان کو ہمیشہ ہر انتخاب سے بھاگنا ہے جی. ابھی ان کو آزادانہ جو ہے نہیں ڈالا جا رہا ہے, وہ بورڈ دکھا رہے ہیں لہرا کے ہاؤس کے اندر, وہ سیکریسی اور بیلٹ کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں. ابھی ان کو
वोट डालने की जो है वो आज़ादी नहीं है, पता नहीं आज़ादी फिर और किसको कहेंगे कि वो खड़े होकर माथों पे स्टैंपें लगाना शुरू कर दें, इसको फिर आज़ादी कहेंगे वो। तो ये उनका काम है जी रोना धोना। मैंने पहले भी गुजारिश की है, मुझे दिली हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन उनके मुकद्दर में 2018 के अंदर जैकपॉट लग गया था गलती से कि वो सड़कों से उठाकर ऐवान में भिजवा दिए गए थे। तो अब भी उनको सड़कों पर रहना है, उनको अगर ये शौक़ है, वो अगर मैंने कहा था मुज़्ज़बाना एहतजाज करेंगे, उनका एहतजाज सर आंखों पर, और जो है वो अगर बाउंड्री लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर वो ये आपको मैंने दिखा दिया बाउंड्री लाइन करने। मैडम शानदाना गुलजार साहिबा MNA हैं और MNA का मसला असेंबली के फोरम पे नहीं हल होना चाहिए। FIA में जाना ये तो एक अच्छी रिवायत तो नहीं है, इस तरह तो फिर सब FIA में और थानों में जाएंगे। सब आप जरा थोड़ा सा कानून पढ़ लिया करें, कभी गुजारिश करें। है वो असेंबली पे MNA के पास उसका मसला है, उसका झूठ बोलना मसला है। आप कह रहे हैं, एक मिनट आप जरा मेरी बात सुन लें। आपको पढ़ा होना चाहिए कि जो भी जुर्म होता है ना उसके ऊपर जो है वो अदालतें और इदारे देते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट करें, उनका मसला, उनके तो बहुत सारे मसले हैं, वो कहाँ हल करेंगे हम। हाँ जी मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इतने सारे मसाइल हैं, लेकिन पिछले सालों भी यही चलता रहा। एक दूसरे लीडर की जो है वो दफा करते रही तमाम पार्टियां, अब भी यही चलता रहेगा। जब कुछ अवाम के बारे में भी सोचेंगे आप। भाई अगर आपने मीडिया फॉलो कर लिया होता, मेरा ख्याल है मेरी गलती है कि मैं आपको नहीं बता सकी कि मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ 12 से 13 दिनों में कितना काम कर चुकी है। 30 अरब रुपए का जो है वो 64 लाख खानदानों को वो घर बैठ के उनकी दहलीज पर वो उनको जो है रमजान पैकेज भिजवा रही हैं। हर शोबा जिंदगी के अंदर जो है वो हो रही है। मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं आप तक नहीं पहुंचा दीजिए। दूसरा तहरीक इंसाफ का आप कह रहे हैं कि वो इल्जाम न लगाए, साबित करें। आज जरदारी साहब का मुस्लिम लीग नून वोट कर रही है, उनके उम्मीदवार भी मुश्तरका है, तो क्या माजी में इनको 10% कहना, उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटना, उस गलती से आज मुस्लिम लीग नून ने कुछ सीखा है, उस गलती को आज मानते हैं आप? एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो उल्टा कंपैरिजन होता है ना, ये जो आप चले जाते हो ना 90s में, इसके ऊपर मिसाके जमहूरियत हो चुका है। और मिसाके जमहूरियत की पहली क्लॉज क्या थी कि हमने एक दूसरे से माफ़ी मांगी थी कि जो गलत जो है वो चीज़ें हुई, हम जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, हम वो नहीं करेंगे। सो वो तो है पुरानी बात। अब जहाँ तक ये बात है, ये हमारी पार्टी के वर्कर हैं जी शोएब मिर्ज़ा साहब, और ये शोएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद नहीं दी, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है पंजाब की आवाम के लिए करने के लिए। हम सब हैं ये करने के लिए। और मैंने सबसे पहले शानदाना को जो है वो ये ट्वीट करके भी कहा था कि आपको ये साबित करना पड़ेगा इनफ इज इनफ। और शुएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी, जिसके ऊपर उनको नोटिस जारी किया गया। बात की जाए तो 371 के अवान में 355 वोट आज कास्ट होने हैं, उसमें से जो हुकूमत है उसके तमाम वोट कास्ट हो जाएंगे और 44 इलेक्टोरल वोट बनते हैं हुकूमत को जो आज आसिफ जरदारी को देने चाहिए। तो तमाम वोट क्या देंगे? बिल्कुल सबके सब वोट पड़ेंगे जी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर एक भी वोट जो है वो ना ज़ाया होगा, ना वो एब्सेंट होगा, और तमाम के तमाम वोट लेकिन सोशल मीडिया में कुछ फेक वीडियोस खानदानों की चलाई जा रही है, क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी, यानी कि जो इस अच्छे प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश करें? मैं दोबारा से फिर यही कहना चाहती हूँ कि मेरी फिर से गुजारिश है, शानदाना गुलजार साहब ने कुछ ज़्यादा ही बाउंड्री से बाहर निकल के जो है वो खेल दिया था, तो उनको जो फटाफट नोटिस मिल गया है। मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ, मैंने ये जब बात की थी आज से कुछ दिन पहले कि जो है वो ये मत कीजिएगा, तो मेरी बात को PTI ने हवा में उड़ा दिया और मेरी वो हर ट्वीट के ऊपर कह रहे हैं कर दी हमने जो है वो रेड लाइन क्रॉस, अब कर ले जो करना है। मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं सबको फिर से गुजारिश कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक जो है ये गलत प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ाम लगाना, फेक वीडियोस बनाना बंद कर दें। लेकिन अगर जो है ये प्रोपेगेंडा सेल बाज ना आया तो फिर जो कानून के तहत किया जा सकता है। बारी बारी कर ले भाई, मैं ऐसे क्या करूँ? हो चुके हैं रुखसत, वो कल घर से रुखसत हो चुके हैं। इधर से भी एजाज चौधरी, हाँ जी एक जगह से एजाज चौधरी कर लें। हाँ जी अच्छा जी जी जी
चौधरी साहब हैं जो आज सदर के हवाले से हैं, कानून साज जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं, इस हवाले से बता दें। नहीं, कानून साज अगर तो कानून की खिदमत करते हुए जेलों में पड़े हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ चलती हूँ, उनको छुड़ा के लाते हैं। और अगर कानून साज जो हैं वो इदारों में बगावत कराने के लिए और वो इस मुल्क के अंदर म्यूटनी कराने के लिए, इस मुल्क के कोर कमांडर हाउस में आग लगाने के बाद बेटे को फखरिया कह हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ आग लगा के आ गए, अगर वो इस चक्कर में कानून साज अंदर है तो उनके पास पाकिस्तान के कानून के तहत कोई इम्यूनिटी नहीं, ऐसा नहीं है। मैडम सुन लेना, 3600 रुपया दिया एक ब्रांड ने, जो ब्रांड का पैक था वो 4000 में, और दूसरा वजीर इत्तला ने क्या नवाज शरीफ की तस्वीर शाया करने से अमूली की मकबूलियत में इजाफा हुआ? देखिए, नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है वो तस्वीरों की मोहताज नहीं है भाई। पहली तो बात यह है कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नवाज शरीफ के बगैर कुछ भी नहीं है, और नवाज शरीफ साहब के बगैर ना नून लीग का कोई वजूद है, और ना जो मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या पंजाब का वोटर हो जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो ना 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कभी भूल सकता है। तो वो तस्वीरों के मोहताज वो नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि जो इसका पूरा ब्रेक डाउन इंशाल्लाह ताला, ये चूँकि बात कुछ करियाना की साइड से, कुछ साइडों से जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते वो ये बातें करते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन एक मैं डिटेल्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से आज उसकी अप्रूवल लेके मैं वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूंगी कि उसके अंदर जो वो पैकेज है वो कितने का ख़रीदा गया, प्लस उसके अंदर कैरियर के चार्जेस और प्लस जो हम होम डिलीवरी कर रहे हैं उसके डालने के बाद वो चार्जेस क्या बनते हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जो भी सवाल आप पूछेंगे उसको बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर मैं जारी करूँगा। आप ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी आपके मुश्तरका एक उम्मीदवार है, तो आसिफ जरदारी सब पे भारी, उनका नारा है, क्या नून लीग इससे मुत्तफिक है? हाँ बिल्कुल, वो अगर उनको पीटीआई को अच्छा, पीपल्स पार्टी को अच्छा लगता है कि जरदारी साहब सबसे भारी हैं, तो वैसे तो चेहरे देखने में इतने भारी नहीं लगते, लेकिन उनकी सियासत अच्छी है, वो मुफाहमत की चैंपियन है, वो सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं, और अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों वो एक सेंसिबल जो है वो एक लीडर की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको आज एक मिनट, जी कल तक जो हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये एक्चुअली 64 मिलियन घरों को जाना है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था चंद जो है वो दिन के लिए, ताकि हमें पता चले कि कोई टीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम आता है, किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। इंशाल्लाह ताला जो इसकी इफेक्टिव और मुकम्मल जो वो है वो यकम रमज़ान से शुरू होने जा रहा है, और उसके हवाले से अवेयरनेस के हवाले से भी और उसकी डिटेल्स के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों आपको इसकी पूरी डिटेल्स से मैं आपको इत्तेमाद दूंगी। जिन लोगों के नाम नहीं है उस पैकेज में, कौन जी? ये उन्होंने फैसला करना है, ये हमारा फैसला नहीं है। ये जो पैकेज आ रहा है, नहीं अगेंस्ट को नहीं खड़ा हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। मौलाना साहब की सीटें चोरी हुई हैं केपी से, उनको बिल्कुल धांधली के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है ना, मौलाना का अगर मैंडेट जो है वो चोरी किया है पीटीआई वालों ने, तो उनका बिल्कुल हक है कि वो उसके ऊपर जो चलाएं। उनके कैंडिडेट पंजाब में तो थे नहीं, इसलिए मुझे तो कोई कंसर्न है नहीं, और मौलाना साहब अगर केपी के अंदर जो है तहरीक चलाएं, मैं उनके साथ हूँ। क्या ये अच्छा ना होता कि वो जो तीसरी जमात जिसको आप बिल्कुल ही आप समझ रहे हैं कि भाई भी होना चाहिए, वो भी साथ होती ताकि इस अवाम के लिए कुछ सुख का सांस मिले? एक तो जमात है नहीं जी, ठीक है जी, वो अब आज़ाद पंछियों का एक टोला है, और वो पंछियों का टोला अभी भी अपनी तस्वीर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आप देखिए अली अमीन गंडापुर को जो उन्होंने नॉमिनेट किया है कि आप चीफ मिनिस्टर केपीके के लिए, उनको कोई और ढंग का बंदा नहीं मिला था। 9 मई के अंदर मतलूब बंदे को वो ये पॉइंट करके क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर महमूद अचकज़ई साहब जो है उनके अपॉइंटमेंट वाले दिन, जिस दिन उनको अपॉइंट किया, उनको नॉमिनेट किया जाता है, उससे एक दिन पहले अचकज़ई साहब टिका के जो है वो फ़ौज के खिलाफ तकरीर फरमाते हैं, और तकरीर फरमा के जो है वो फिर अनाउंसमेंट कर दी जाती है उनकी, शायद उनसे रिक्वायर्ड ये था कि वो ये करें। और खोसा साहब तो खैर बता चुके हैं
कि वो बेचारे मेरे ख्याल नवा उनको शायद वो पता चला, तो ये नहीं पता छुपानी कौन सी बात होती है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 10 दिन पहले ही फैसला हो गया था इमरान खान ने, और उनको बता दिया गया था उन्होंने कहाँ तक खेलना है। सो अभी भी इमरान खान और उनकी पार्टी जो थी मरहूम, वो अभी भी ना अपनी तस्दीक करने के लिए तैयार हैं, ना अपने किसी अमाल पे शर्मिंदा हैं, ना वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर फितना फसाद को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो फितना फसाद की इजाज़त तो कोई पार्टी हो, कोई ग्रुप हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। पंजाब कबीना में मज़ीद इजाफा कब हो रहा है? पंजाब कबीना में क्या इजाफा हो रहा है, कब तक हो रहा है? अभी नहीं। पंजाब में भी मुस्तकबिल में हेल्थ कार्ड शुरू होगा, क्योंकि केपीके में हेल्थ कार्ड का इजलास शुरू हो चुका है, इस हवाले से। जी, ये कार्ड मैं दोबारा याद करा देती हूँ, 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट में शुरू किया था, जिसको यहाँ पर कॉपी किया गया। और चूंकि हम उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में थे और ये दूसरे सूबों को कहा गया था उसको रेप्लिकेट करने के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, आपने मुलाहिज़ा की। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में तूफ़ानी बारिशों के इम्कान पर पेशगी, हिफाजती और इंतज़ामी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। हुक्काम को नशेबी इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाए जाने की हिदायत की गई। अवाम को सूरत हाल से पेशगी खबरदार रखा जाए और इस ज़िम्न में मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल अलर्ट सर्विस से मदद ली जाए। दही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, जबकि बालाई अजला में कल से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है, जो कि 14 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने के लिए मरासला जारी कर दिया है। मरासले में कहा गया है कि बारिशों से पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी, जबकि शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDMA ने ज़िले इंतजामिया को पेशगी इक़दामात उठाने की हिदायत की है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। ताहम बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले कालाम की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -9, गोपस -3, हुंजा -2, जबकि बगरूट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप पाकिस्तान वापडा के नाम रही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेले गए इवेंट के फाइनल में वापडा ने पाकिस्तान एयर फोर्स को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापडा ने 40 के मुकाबले में 48 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान आर्मी और HEC को मुश्तरका तौर पर ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुल्क के 3 स्टेडियम्स कजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें नेस्पा को काम ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। खेल की खबरें आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।